اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ میسنی گھنی جادوگرنی ابھی شادی کو 2 ماہ ہی ہوئے تھے۔ پہلے میرا پتر مہینے میں ایک بار پنڈ آیا کرتا تھا، اب ہر ہفتے دوڑا چلا آتا ہے۔ ضرور تعویذ کیے ہوں گے۔ اماں نے بڑبڑاتے ہوئے کروٹ لی تھی اور چادر سر تک تان کر سونے کی کوشش کرنے لگی تھی، جبکہ چھت کے اوپر ٹہلتے ہوئے ہونٹوں پر شرمگین مسکراہٹ لیے دوپٹے کا کونا انگلیوں پہ لپیٹے وہ گنگنا رہی تھی اور اس کے قدم سے قدم ملاتا چاندنی رات کے جادو میں کھویا اس کے چہرے کو چھوتی شریر لٹوں کو دیکھتا وہ دھیرے سے مسکرا رہا تھا جو خود میں مگن گنگنا رہی تھی۔ شرم ہی مک گئی ہے آج کل کی لڑکیوں میں۔ اماں نے گانے کے آخری بولوں پہ استغفار پڑھتے ہوئے حسب عادت بہو کو کوسا تھا، جو ہر چیز سے بے پرواہ اپنی محبت کے سنگ ہوا میں اڑ رہی تھی۔ اماں، میں بانو کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں، اختر نے آستین کے بٹن بند کرتے ہوئے مسرور سے انداز میں صحن میں آ کر کہا تھا۔ اماں، جو چارہ اٹھائے جانوروں کے باڑے کی طرف جا رہی تھی، ایک دم سے ہی ٹھٹک کر رہ گئی۔ اچھا، اسی لیے صبح سے کمرے میں گھسی ہوئی ہے میسنی۔ اماں نے تصور میں بانو کو سامان باندھتے ہوئے دیکھا تھا۔ اماں کے ہاتھوں سے چارہ چھوٹا اور قدموں کے پاس ڈھیر ہو گیا اور اماں بھی وہاں ہی بیٹھ کر سر پہ ہاتھ رکھ کر اونچی آواز میں رونے لگی۔ ہائے وے لوگو، دیکھو کیسے میرے ایک معصوم پتر چھین لیا۔ اس گھنی میسنی جادوگرنی نے کالی ناگن جیسی زلفوں کا جادو ہی کم نہیں تھا، اوپر سے میٹھی آواز میں گانے سنا سنا کر مت مار دی ہے میرے پتر کی، جو اس بڑھاپے میں بوڑھی ماں کو اکیلا چھوڑ کر بیوی کو لے کر ہمیشہ کے لیے شہر جا رہا ہے۔ اف اماں، کیا رولا ڈال رہی ہو؟ میں بانو کو شہر دکھانے کے لیے لے جا رہا ہوں، 2 دن کے لیے، ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہی ہے وہ۔ اب بس بھی کرو یہ رونا دھونا، کیا سارا پن اکٹھا کرو گی؟ اختر نے جھنجھلاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ غصے کا تیز تو تھا ہی، دوسرا اماں کے لاڈ پیار نے اسے ضدی اور خود سر بنا دیا تھا، فطرتاً جلد باز، اپنی کہنے اور اپنی کرنے والا۔ اس لیے ابھی بھی اماں سے اجازت لینے کی بجائے مطلع کرنا ہی کافی سمجھا تھا۔ اماں بھی اسے دبتی تھی۔ ابھی بھی اختر کی تیوری چڑھی دیکھ کر اور 2 دن کا سن کر دل کو کچھ تسلی ملی تو اماں ایک دم سے چپ کر گئی، پھر لہجے میں نرمی سمو کر بولی، میں تو تیرے بھلے کے لیے کہہ رہی تھی۔ شہر کی ہوا لگتے ہی اچھی بھلی زنانیوں کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں، اور تیری زنانی تو ویسے بھی ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتی، شہر جا کر تو ویسے دماغ آسمان پر چڑھ جائے گا۔ اماں نے ہاتھ سے بکھرا ہوا چارہ سمیٹتے ہوئے کن اکھیوں سے سفید کلف لگے سوٹ میں تیار کھڑے اختر کو دیکھا تھا، جو واپس پلٹتے ہوئے ایک دم رکا تھا۔ اماں، فکر مت کر، مجھے پتا ہے اپنی زنانی کا، ابھی تو جانے دے، پہلے ہی دیر ہو رہی ہے، اختر نے جلدی سے کہا اور بانو کو آواز دی۔ آئی جی۔ اندر سے جھٹپٹ سرخ جوڑے میں تیار بنی سنوری ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ اور کاجل بھری آنکھوں میں چمک لیے بانو کو آتا دیکھ کر اماں کا منہ ایسے بن گیا جیسے دانتوں تلے کڑوا بادام آ گیا ہو۔ وے جھلیا، اس شوخی کو شہر لے جا کر اتنا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ خود تو اپنے یار دوستوں کے ساتھ رہتا ہے، اس باندری کو کہاں رکھے گا 2 دن؟ اماں کے باندری کہنے پر بانو سلگ کر رہ گئی تھی، مگر اختر کے سامنے اماں کا جواب دے کر وہ کوئی تماشا نہیں لگانا چاہتی تھی، اس لیے وہ منہ بنا کر رہ گئی تھی، جبکہ اماں کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طرح ہنستی مسکراتی سجی سنوری بانو کو روک لے۔ ہر ساس کی طرح اماں کو بھی بہو گندے حلیے میں گدھوں کی طرح دن رات کام کرتی ہی اچھی لگتی تھی۔ اب سرخ جوڑے میں چمکتی دمکتی شرماتی بہو اماں کے اندر کی ساس کو کانٹے کی طرح چبھ رہی تھی، اور ایسے کانٹے نکالنے کی کوشش ہر ساس بخوشی کرتی ہے، اماں بھی یہی کوشش کر رہی تھی۔ اوہو اماں، آپ کو تو وکیل ہونا چاہیے تھا، ہر بات پر جرا، ہر بات پہ تنقید، اتنا بے وقوف نہیں ہوں، سب سوچا ہوا ہے، 2 دن ہم خالہ رقیہ کے گھر ٹھہریں گے، اور تو کھڑی کیا دیکھ رہی ہے، جلدی سے چادر اوڑھ کر آ، یہ نہ سمجھ کے شہر لے جا رہا ہوں تو شہر والوں کی طرح اپنی عورت کو کھلے منہ اور ننگے سر لیے پھروں گا۔ اختر نے اماں کا غصہ بانو پہ اتارتے ہوئے تیکھے لہجے میں کہا تھا تو وہ گھبرائی ہوئی جی اچھا کہتی تیزی سے اندر کی طرف بھاگی تھی۔ بیٹے کے سخت لہجے سے اماں کو کافی تسکین ملی، جلدی سے پاس آ کر بولی، اچھا کیا ہے، ابھی سے اس کی اوقات سمجھا دی ہے، ایسا کرتی ہوں میں بھی تم لوگوں کے ساتھ چلتی ہوں، بہن رقیہ سے ملے مجھے بھی کافی ٹائم ہو گیا ہے، بڑی یاد آتی ہے نمانی، اماں نے چلاکی سے کہتے ہوئے آخر میں لہجے میں مصنوعی دکھ سمو لیا تھا۔ رقیہ اماں کی خالہ زاد بہن تھی،
जिससे अम्मा की कभी भी नहीं बनी थी। अम्मा आप भी हद करती हैं, पीछे घर की रखवाली जानवरों की देखभाल कौन करेगा, और वैसे भी खाला रुकैया से कभी आपकी बनी ही नहीं है। मेरी शादी पर भी खूब तमाशे लगाए थे आप दोनों ने, आज तक मेरे दोस्त हंसते हैं मुझ पे। अच्छा अब हम चलते हैं, रब रखा। अख्तर ने बानो को आते देखकर जल्दी से अम्मा से रुखसत चाही थी कि कहीं वो कोई और बात लेकर ना बैठ जाए। अम्मा ने बुरे बुरे मुंह बनाते हुए दोनों को जाते हुए देखा और बेदिली से चारा उठाए जानवरों के बाड़े में चली गई। सारी जिंदगी उसके बाप से मार खाई है और अब बेटा भी जन मुरीद निकला। हाय मेरे अल्लाह मेरे नसीब। अम्मा ने भूरे रंग की भैंस को चारा डालते हुए खुद कलामी की थी। जल्दी से बाकी काम निपटाए और चादर ओढ़कर घर से निकल गई। दोपहर के वक्त माई जीरा के तंदूर पे सब औरतें रोटी लगाने के बहाने इकट्ठी हुई थी और रोटी लगाने के साथ साथ सारे अंदर बाहर की अहम खबरें यहाँ ही एक दूसरे तक पहुँचाई जाती थी। माई जीरा इस गाँव की बड़ी थी, सारी अहम और अंदर की खबरों को दबाए ऐन वक्त पर भांडा फोड़ने में माहिर और मीसनी घुन्नी जादूगरनी बहू के नए वार के बारे में सबको बताना भी तो जरूरी था ना। ये सोचकर अम्मा के कदमों में मजीद तेजी आ गई थी। जमीला अम्मा शादी करके उस गांव में आई थी और तब से अब तक वक्त की हर सख्ती और नरमी को खुद पर सहती आज वो बुढ़ापे की दहलीज पर खड़ी थी। उस गांव से उनसियत और प्यार अपनी जगह था, लेकिन गांव के लोगों के साथ बिना मोहब्बत और खलूस का रिश्ता वक्त गुजरने के साथ साथ मजीद मजबूत हुआ था। अम्मा की सारी जिंदगी सख्त मेहनत और मुशक्कत की चक्की में पिसती हुई गुजरी थी। शादी के वक्त जहां उसके गालों से कुदरती लाली और होंठों से बात बेबात हंसी फूटती थी, गुजरते वक्त के साथ सब वक्त की धूल में दबता चला गया। शोहर सिमाब सिफ्त और हर जाय निकला। 4 साल के अख्तर को जमीला के सुपुर्द करके नई दुनिया बसा ली और दूसरी शादी करने के बाद कभी पीछे मुड़कर वापस नहीं देखा था। जमीला की उम्र सास की चाकरी करते और ताने सुनते गुजरने लगी थी। जमीला की सास को अपनी बहू ही गलत लगती थी, जिसकी कमियों और खामियों की वजह से तंग आकर उसके बेटे ने दूसरी शादी कर ली थी और अपनी माँ को भी भूल बैठा था। जब तक वो जिंदा रही जमीला का जीना हराम किए रखा। जमीला भी खामोशी से सर झुकाए इस इल्जाम को सुनती और बर्दाश्त करती रही। अख्तर अम्मा का लाडला जरूर था, मगर जहाँ जमीला अपने गुस्से और जलाल में आ जाती वहाँ अख्तर भी दबक कर रह जाता था। अख्तर की शादी अम्मा के पसंद से हुई थी। अख्तर शहर की फैक्ट्री में मुलाजिम था। तनख्वाह इतनी नहीं थी कि अलग से किराए पर घर लेकर अम्मा या बीवी को अपने साथ रखता, इसीलिए बानो अम्मा के साथ गाँव में ही रहती थी और अख्तर के आने के दिन गिनती थी। अख्तर भी हर हफ्ते भागा चला आता। अम्मा दोनों की बेकरारी देखकर कभी तो हंसकर और कभी मुंह बनाकर रह जाती। बानो जिसकी हर मुमकिन कोशिश होती थी कि अख्तर के आगे पीछे रहे, ऐसे में उसे बात बेबात टोकती अम्मा उसे बहुत बुरी लगती थी। उसे उनका वजूद बुरी तरह खटकता था। दरअसल दोनों ही सास और बहू के रवायती रिश्तों को बाखूबी निभा रही थी। बानो अख्तर के इल्तफात और मोहब्बत और शिद्दतों पे इतराई फिरती थी और अम्मा के मुंह के बनते बिगड़ते जाविये उसे बहुत तस्कीन देते थे। उसके लिए ये हार जीत का खेल बन चुका था, मगर वो ये नहीं समझती थी कि उसकी माँ से हार जीत का नहीं बल्कि इज्जत और एहतराम का रिश्ता बनता था। इन रिश्तों में जीत तो किसी की नहीं होती, हाँ मगर हार दोनों के हिस्से में जरूर आती है। शहर की औरतों के लिए नंगे और खुले मुंह पे तनकीद करने वाला अख्तर खाला रुकैया की अदाएं दिखाती, कह के लगाती बेटियों के साथ हंसी मजाक करते हुए चादर में सुकड़ी सिमटी बीवी को भूले बैठा हुआ था। अंदरूने लाहौर की तंग और तारीक गलियों में वाक़े इस 2 मंजिला मकान में खाला रुकैया अपनी आल औलाद के साथ रिहाइश पजीर थी। बड़ी बेटी नीलोफर शादी के कुछ अरसे बाद ही तलाक लेकर वापस आ गई थी। इससे छोटी 2 बहनें भी अच्छे रिश्तों की तलाश में बैठी थीं। तंगो तारीक कमरे और भांत भांत के लोग और आवाजें बानो कुछ ही देर में घबरा गई थी। ऊपर से खाला रुकैया की तीनों बेटियों के अंदाजो अतवार उसे मजीद परेशान कर रहे थे। खास तौर पर नीलोफर की बेतकल्लुफी और इल्तफात उसे एक आंख ना भा रहे थे। बानो के कपड़ों से लेकर उसके उठने बैठने तक को मजाक का निशाना बनाया जा रहा था और अख्तर की जुबानी ये सुनकर कि उसे शहर देखने का बहुत शौक है, इसीलिए उसे साथ लेकर आया है। सब कहका मारकर हंस पड़े थे। खफ़त से बानो का चेहरा सुर्ख पड़ गया था और उसने दिल में बेइख्तियार सोचा था, इससे अच्छी तो मैं पिंड में ही थी जहाँ मेरी अहमियत और वक़्त तो थी ना। यहाँ आकर तो अख्तर की नजरें नीलोफर से ही नहीं हट रही थी, जो खुद भी तितली की तरह उसके इर्द गिर्द मंडला रही थी। बानो ने बहुत नागवारी से उस मंजर को देखा था।
तेरी बहू तो बहुत तेज निकली, शक्ल से तो भोली भाली सी लगती है। रशीदा ने सबसे पहले तबसरा करना अपना फर्ज समझा था, क्योंकि वो खुद भी 3 बहुओं की सताई हुई बज़ाहिर एक मजलूम सास थी, मगर दर हकीकत उसने अपनी बहुओं का जीना हराम कर रखा था और इसी बात के ताने अम्मा बहुत जोर शोर से मारती थी। आज रशीदा को मौका मिला था तो वो भला कैसे पीछे रहती। शक्ल से तो बहुत मस्कीन लगती है, मगर गुन्नों की पूरी है, इसीलिए तो तेरी बहुएं आए रोज लड़कर मैके गई होती हैं। अम्मा ने हिसाब बराबर करते हुए कहा तो पास बैठी बाकी औरतें हंस पड़ी। रशीदा का पारा चढ़ गया। देख जमीला, मेरे मुंह ना लगो, तेरे गुण इतने अच्छे होते तो तेरा बंदा तुझ पर सोत क्यों लाता। हालांकि बेटे की माँ थी तू, मगर उसने मरते दम तक इस बांझ औरत के साथ जिंदगी गुजार दी, कभी पलट कर ना आया और तू यहाँ अकेली पड़ी सास की जुतियाँ खाती रही। रशीदा ने अपनी जगह से उठकर हाथ नचाते हुए कहा तो अम्मा का रंग फक हो गया। सब जानते थे कि यह अम्मा का कमजोर पहलू था, जिस पर वो चाह कर भी किसी से बात नहीं करती थी। क्या हो गया रशीदा, बहू की बातें करते करते एक दूसरे की जात पर क्यों हमला कर रही हो? और जिसकी मिसाल तूने दी है, क्या तू नहीं जानती कि एक नंबर का हरजाई था वो? नेक और शरीफ औरत उसे रास नहीं आई थी। सुगरा मासी ने रशीदा को झाड़ते हुए कहा था। वो गांव की बड़ी बूढ़ियों में शुमार होती थी, सब उसकी इज्जत करते थे। सुगरा मासी ने अम्मा का उड़ा रंग और आंखों में फैली नमी देख ली थी। दूध उबलने के लिए रख आई थी, कहीं उबल न गया हो, मैं चलती हूँ। यकदम अम्मा ने अपनी जगह से उठते हुए तेजी से कहा और बगैर कुछ सुने वापसी की राह ली। कर लो गल, अभी मुझे कह रही थी कि तेरे हाथ का साग खाए, काफी वक्त गुजर गया है। मैंने भी कहा कि आज मेरे साथ रोटी खा। मेरी बहू ने साग बनाया है, अब बेचारी भूखी ही चली गई। पता नहीं घर में भी कुछ बनाया होगा कि नहीं, पीछे है कौन जिसके लिए बनाकर आती। अकेली जान अपने लिए क्या तरद्दुद करती भला, मगर खैर मुन्ने के हाथ भिजवा दूंगी। सुगरा मासी ने अफसुर्दगी से खुद कलामी की थी। रशीदा ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया था। अम्मा की आंखों में नमी भी वो देख चुकी थी। उसने जल्दी से गर्म रोटियां कपड़े में लपेटी और घर की राह ली। जमीला, कहाँ है तू? रशीदा हाथ में ट्रे पकड़े खुले दरवाजे से अंदर आई। खाली सहन में नजरें दौड़ाई, आवाज देकर पूछने लगी। उसी वक्त रोई रोई आंखों के साथ अम्मा अंदर कमरे से निकल आई। मुझे पता था तूने अभी तक रोटी नहीं खाई होगी। आजा, आज कुक्कड़ पकाया है देसी घी में, तेरे लिए खास तौर पर लेकर आई हूँ। रशीदा ने चारपाई पर बैठते हुए कहा तो अम्मा सत्ते हुए चेहरे के साथ आहिस्ता से बोली, रशीदा रहने देती, मुझे वैसे भी भूख नहीं है। चल मजाक मत कर, तेरे बगैर मेरे हल्क से नवाला कैसे उतर सकता है? तुझे भूख नहीं है तो मेरे लिए खा ले। चल बिस्मिल्लाह कर, रोटी को इंतजार नहीं करवाते। रशीदा ने रोटी तोड़ते हुए कहा तो जमीला ने भी तकलीद की। थोड़ी देर बाद वो दोनों बातों में ऐसे मगन थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। लो कर लो गल, मैं नमानी की भूख का सोचकर घर से भागी भागी आई हूँ और यहाँ खाना खाते हुए ठट्टे लग रहे हैं। सुगरा मासी लाठी के सहारे आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते घर के अंदर दाखिल हुई तो चारपाई पे दोनों को सर जोड़े बैठा देख कर बोली। उसका 12 साला पोता मुन्ना ट्रे उठाए पीछे पीछे था। ये भी खूब कही, इस उम्र में भला तुम भाग भी सकते हो? रशीदा ने जमीला के हाथ पर हाथ मारते हुए हंस कर कहा था। बड़ी खीकी कर रही हो कुड़ियों, सुगरा मासी ने दूसरी चारपाई पे बैठते हुए कहा तो लफ्ज कुड़ियों पे रशीदा कह का मारकर हंस पड़ी। सुगरा मासी छोड़े, रशीदा को तो आदत है मखौल करने की। जमीला ने अपनी हंसी को छुपाते हुए कहा, सब समझती हूँ मैं। अरे नमानियों, सुख सबके अपने अपने हो सकते हैं, मगर दुखों की सांझ सबकी एक ही होती है। अगर सारी जनानियां इस बात को समझ लें तो सारे झगड़े ही मुक जाएं। सुगरा मासी ने अपनी सारी उम्र का निचोड़ बताया था। ठीक कहती हैं आप। अच्छा, आप दोनों बातें करो, मैं दूध पत्ती बनाकर लाती हूँ। अम्मा ने अपनी जगह से उठते हुए कहा था। अख्तर, अब तुझे मेरी कोई परवाह नहीं है। पहले तो मेरे आगे पीछे फिरता था, मगर अब 2-2 महीने घर नहीं आता और आकर भी तेरा मुंह बना रहता है, बात बात पर लड़ता और चिढ़ता है। कहाँ गई तेरी मोहब्बत? अख्तर इस बार छुट्टी पे आया तो अपने हाल से बेहाल होती बानो फट पड़ी। उसकी जिंदगी में कुछ ही दिन बाकी रहते थे। भाड़ में गई मोहब्बत। बंदा घर क्या आए, तुम सास बहू की बातें, लड़ाई झगड़े शिकवे शिकायतें ही खत्म नहीं होती। ऊपर से तेरी ये हालत हर वक्त बेजार उकताई हुई रहती है। बंदा घर में आराम करने आता है या बीवी की बीमारी और शिकवे देखने। अख्तर आजकल और ही हवाओं में उड़ रहा था, जिसकी सुनगुन बानो को भी मिली थी। एकदम से ही भड़क कर बोला था। बानो हक्का बक्का उसकी शक्ल देख कर रह गई थी, जबकि अख्तर बोलता हुआ घर से बाहर निकल गया था। फिक्र मत कर, 1-2 बच्चे हो जाएंगे तो खुद ही ठीक हो जाएगा, तू ये दूध पी ले। अम्मा ने गुमसुम सी बैठी बानो के सामने दूध का गिलास रखते हुए तसल्ली दी। मत करो ये झूठी हमदर्दियाँ, सब आपकी पढ़ाई हुई और सिखाई हुई पटियां हैं।
आप जलती थी हमारी मोहब्बत देख देख कर। बानो ने अंदर की खोलन उंडेली थी। अम्मा हंस पड़ी। पागल है तू, शुरू के चाव चोंचले सारे मर्द ही करते हैं। जब तक तू उसके आगे पीछे फिरती रहती थी वो भी तुझसे खुश और राजी था, मगर जब तू अपनी हालत से ही तंग रहने लगी तो वो भी तुझसे पीछे हट गया। मर्द की फितरत ही ऐसी है, इस बात को समझ लेगी तो आइंदा दुख नहीं उठाएगी। अम्मा ने वापस पलटते हुए कहा था। बानो मुंह बनाकर रह गई थी। 6 माह की फातिमा चारपाई पर बैठी अपने सामने रखे खिलौनों से खेल रही थी। फातिमा में सबकी जान थी। अम्मा की लाडली पोती तो थी ही, अख्तर भी बेटी पर जान देता था। अम्मा ने पीढ़ी पर गुमसुम सी बानो को देखा जो चावल साफ करना भूल गई थी और किसी गहरी सोच में गुम थी। 2 दिन के पहने हुए कपड़ों में मलबूस, बालों को बगैर कंघी के बांधे हुए वो बहुत उदास दिखाई दे रही थी। अख्तर की बढ़ती बेइतनाई ने उसे तोड़कर रख दिया था। वे बानो, आज कोई गीत तो सुना, बड़ा टाइम हो गया तेरी आवाज सुने हुए। अख्तर को तो अक्सर सुनाती थी, आज सास को भी सुना दे। मुर्गियों का डरबा साफ करती अम्मा ने उसकी तवज्जो हटाने के लिए बेसाख्ता कहा था। बानो जो पहले अम्मा को मना करने वाली थी कुछ सोचकर चुप हो गई। फिर उसकी सुरीली और अफसुर्दगी में डूबी आवाज सारे सहन में फैल गई। बानो के दिल का दर्द जुबान पर आ गया था। एक अंदेशा जो सच होने के करीब था। उसने गहरी सांस ली और बानो ने दुपट्टे से आंखों की नमी साफ की तो चौंक गई। सामने हाथ में बैग था। अख्तर खड़ा उसे ही देख रहा था। उसने फौरन चावल का थाल उठाया। जब उसके कानों में अख्तर की आवाज गूंजी, मैं नीलोफर से दूसरी शादी कर रहा हूँ, तुझे खर्चा पानी मिलता रहेगा, तू आराम से यहाँ अम्मा के पास रहना, वो मेरे साथ शहर में ही रहेगी। बानो के हाथ से थाल छूट गया। सारे चावल सहन में बिखर गए। उसका शक सच का रूप लिए सामने आ चुका था। वो फटी फटी आंखों से उसे देख रही थी। मुर्गियों के डरबे को साफ करती अम्मा ने चौंक कर सामने वाला मंजर देखा। बेटी की माँ और बानो की सास बनकर सोचा तो सब ठीक लगा। बहुत इतराती फिरती थी ना, मुझे नीचा दिखाना चाहती थी, देख ले ये औकात थी तेरी मोहब्बत की। अंदर की सास पूरे करोफर से बोली थी, मगर ना जाने फिर क्या हुआ, लम्हों में सब बदल गया। बानो की जगह जमीला आ खड़ी हुई थी। औरत बनकर सोचा तो उसका दुख अपना लगा। दुखों की सांझ 2 औरतों की एक ही हो गई थी। अम्मा उठी और चील की तरह झपटी थी अख्तर पर। बेशरम, बेहदायत, तुझे जरा लाज नहीं आई ऐसी बात करते हुए? नेक और शरीफ बीवी के होते हुए इधर उधर मुंह मारता फिर रहा है, अपने बाप के नक्शे कदम पर चलने लगा है। जो करना है कर, मगर मेरी एक बात याद रखना, तेरा हमसे कोई रिश्ता नाता ना रहेगा। मैं समझूंगी कि मेरा कोई बेटा नहीं था, सिर्फ एक ही बेटी है बानो, और मैं उसी का साथ दूंगी। अम्मा ने अख्तर के सामने चट्टान बनकर खड़े होते हुए कहा था। अम्मा, अख्तर तड़प उठा था। जो भी था वो अम्मा से बहुत करीब था। अख्तर ने आगे बढ़कर काम तो ही अम्मा को संभालना चाहा। अम्मा ने उसके हाथ झटक दिए। कुछ और नहीं तो कम अज कम अपनी फूल जैसी बच्चे के बारे में ही सोच लेना था। मेरे पास तो बेटा था जो बाप की फितरत पर गया है, मगर तेरे आगे तो बेटी है। कल को कोई हरजाई सिर्फ उसे भी मिल गया तो क्या करेगा तू? अम्मा ने नर्म लहजे में नन्ही फातिमा की तरफ इशारा करते हुए कहा तो अख्तर खौफ से कांप उठा। आगे बढ़कर बेटी के सर पर हाथ रखा और खामोशी से अंदर कमरे में चला गया। मर्द बनकर जो फैसला किया था, बाप बनकर उसे बदल चुका था। और इस ढलती दोपहर में सहन में खड़ी दोनों औरतों ने दुखों की सांझ का रिश्ता बना लिया था। वो रिश्ता जो बहुत मजबूत था। उस दिन के बाद उनमें कभी सास बहू वाले झगड़े नहीं हुए थे। कभी कभी तो अख्तर भी हैरान होकर पूछ बैठता था, सास बहू में इतनी मोहब्बत? तो बानो बेइख्तियार हंसकर कहती थी, सास बहू नहीं, ये 2 औरतों के दुखों की सांझ का रिश्ता है जिसे तुम कभी नहीं समझ सकोगे। और वाकई अख्तर नासमझी से कंधे उचकाकर रह जाता है। खुशियों का संगी साथ दुख की सांझ को कैसे समझ सकता था?